نوٹس نکالیں. آج سے ہم نے نیو سبجیکٹ سٹارٹ کرنے ہیں بایو کیمسٹری. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے دیکھا جو فزیولوجی جہاں تک پڑھی ہے ہم ایک سبجیکٹ ختم کر کے وہاں سے پھر فیزیو کو آگے لے کے جائیں گے. ابھی فریش نیو سبجیکٹ جو ہمیں سیمسٹر 1 میں سکھائے جاتے ہیں اناٹمی پلس بایو کیم, وہاں سے سٹارٹ کریں گے. ونس وی فنش ون سبجیکٹ ہم پھر فیزیو کو وہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, اور پھر ہسٹولوجی اور ایمبریولوجی بھی اپنے ٹائم پہ آئے گی. تو آج سے ہم ایک فریش نیو سبجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اینڈ دیٹ از کالڈ بایو کیمسٹری. ہیڈنگ دے رہے ہیں کہ بایو کیمسٹری میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے, اینڈ دیٹ از اے ویری ویری ڈرائی سبجیکٹ. اس کو لوگ میڈیکل میں ڈرائی سبجیکٹ اس لیے کہتے ہیں, اس میں کنسیپٹس ہے لیکن اس میں بایو کیمیکل ریئیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس طرح گلائکولسس ہے, کرپ سائیکل ہے, الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہے, بہت سارے ایسے بایو کیمیکل ریئیکشنز ہے جو لوگ کی سمجھ میں آتا ہے کہ یار اس کو رٹنا ہے. رٹنا نہیں ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے. کہیں کہیں پہ انزائمس کی ذکر آئے گی, انزائمس ہم پڑھیں گے کیونکہ انزائمس کیا ہے, بایولوجیکل کیٹالسٹ ہے. کسی بھی ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے, انزائمس چاہیے. پہلے کے ڈیفینیشن کیا ہے بایو کیمسٹری کی ڈیفینیشن لے کے کہ وٹ از مینڈ بائی بایو کیمسٹری. ٹھیک ہے, لیکن نام سے پتہ چلتا ہے بایو مین لائف, لائف سے مراد ہیومن بینگ ہے, کیمسٹری مین کیمیکل پروسیس ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لے کے دا برانچ آف سائنس, دا برانچ آف سائنس which deals biochemical processes and reactions within human beings. ٹھیک ہے, ایکچولی مطلب یہ ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر جتنے بھی بایوکیمیکل ریئیکشن یا پروسیسز ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننا, دیٹ از کالڈ آف بایو کیمسٹری. اس میں ہم نے وہ ساری ریئیکشنز پڑھنے ہیں جس طرح کی فوڈ کی میٹابولزم اس میں ہم پڑھیں گے. اگر ہم کاربوہائیڈریٹس کھائیں گے, جیسے کہ ہم نے فزیولوجی میں کہا تھا اس کی ڈائجیشن بھی ہوتی ہے اور ایبزارپشن بھی ہوتی ہے, لیکن ان فوڈ کی میٹابولزم کیسے ہوتی ہے یہ ہمیں بایو کیم بتاتی ہے. میٹابولزم کے دوران ریئیکشنز کون کون سے ہوں گے, ان ریئیکشنز کے اندر انزائمس کون کون سے ہوں گے, یہ ہمیں کون بتاتی ہے, بایو کیم بتاتی ہے. وہ ہم ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. لیکن بایو کیمسٹری کے اندر جو آج ہم سب سے امپورٹنٹ ایک چیز اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ان کو ہم وٹامنس کہتے ہیں. وٹامنس ایک ایسا پارٹ ہے بایو کیم کے اندر جہاں سے بہت سارے ایم سی کیوز بھی آتے ہیں, اس میں شارٹ نوٹ بھی آتا ہے, اور اسی ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں کو بہت سارے ایگزامس کوشچن بھی ملتے ہیں. ایکچولی وٹامنس کیا ہے, دیز آر دی اسینشیل نیوٹرینٹس, the essential nutrients which required for various biochemical reactions and functions of body, that is called of vitamins. اس کا مطلب یہ ہے کہ وٹامنس وہ اسینشیل نیوٹرینٹس ہیں جو ہمارے باڈی کے اندر بہت سارے بایو کیمیکل فنکشنز اور ریئیکشنز کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ہم آگے کنسیپٹ پڑھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں کو فیکٹرز. کیا کہتے ہیں, کو فیکٹرز. کو فیکٹرز وہ چیزیں ہوتی ہے جس کو ہیلپرز کہا جاتا ہے. کسی بھی ریئیکشن کے اندر کو فیکٹر کا مطلب ہیلپ. ایک انزائم ہے وہ کسی مدد کی وجہ سے, اب ایک انزائم نے ایک ریئیکشن کو کیری آن کرنا ہے, اس انزائم کو کام کرنے کے لیے کیا چاہیے, ہیلپر چاہیے, وہ کو فیکٹر ہوتا ہے. بہت سارے وٹامنس ایسے بھی ہیں جو انزائمس کو کام کرنے کے لیے ایز اے کو فیکٹر بھی کام کرتے ہیں. اگر وہ وٹامنس باڈی میں ڈیفیشینٹ ہو جائے تو وہ انزائم کام نہیں کریں گے. جب انزائم کام نہیں کریں گے, ریئیکشن نہیں ہوگی, تو میٹابولزم کا بھی مسئلے آ جائیں گے. تو وی کین سے میجورٹی آف دا وٹامنس ایکٹ ایز اے کو فیکٹر یا ایکٹ ایز اے ہیلپر فار مینی انزائمیٹک ایکٹیویٹیز. اس میں یہ بھی آپ لوگ لکھیں کہ مینی vitamins act as a cofactor, mean as a helper for various enzymatic activities. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے انزائمیٹک ایکٹیویٹیز کے لیے وٹامن ایز اے کو فیکٹر بھی کام کرتے ہیں, ایز اے ہیلپر کام کرتے ہیں. اگر وٹامن اس کو نہ ملے, اٹس مین وٹامن ڈیفیشنسی ہو جائے, تو پھر انزائم کام نہیں کریں گے اینڈ وی ول سفر فرام لاٹ آف پرابلمس. ٹھیک ہے, نیکسٹ یاد لکھیں کہ موسٹلی vitamins امپروو یا بوسٹ امیونٹی. ہماری باڈی کی جو قوت مدافعت ہے, امیونٹی ہے, اس کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں کیا چاہیے, وٹامنس چاہیے. کیونکہ وٹامن جتنے باڈی کے اندر اچھے ہوں گے اتنی ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہوگی, اور وٹامن کی ڈیفیشنسی سے امیونٹی ویک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھے ڈیپینڈنگ اپون دی نیچر some
some vitamins are fat soluble and some are water soluble. Very good. ठीक है, एक्चुअली विटामिन की जो हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर करते हैं। कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इसकी नेचर जो है या जो सॉल्युबिलिटी की जो वजह है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोगों को नीचे नोट में लिखना है कि फैट सॉल्युबल विटामिन excreted out of the body slowly। इसका मतलब यह है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो बॉडी से एक्सक्रीट होती है बहुत स्लोली एज कंपेयर टू वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो देखिए यहाँ पे इस एक सेंटेंस को समझने से एक पॉइंट आप लोगों को आसान हो जाएगी। टॉक्सिसिटी या ब्रैकेट में लेके अ कंडीशन नोन एज हाइपर विटामिनोसिस, इसको क्या कहते हैं? हाइपर विटामिनोसिस इज मोर लाइकली सीन इन। अब देखें, अगर एग्जामिनर ये पूछे कि हाइपर विटामिनोसिस या टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ये फैट सॉल्युबल विटामिन से ज़्यादा होती है कि वाटर सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल, क्योंकि दे एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी वेरी स्लोली। तो जो विटामिन ज़्यादा देर तक बॉडी में रहेगी उसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस भी ज़्यादा होगी, और उसको हम हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन याद रखें, इसकी टॉक्सिसिटी चांसेस ज़्यादा होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल। हाँ जी, वाटर सॉल्युबल में अगर आप लोग सुनेंगे विटामिन डेफिशिएंसीज, वो अलग चीज़ है। विटामिन का बॉडी के अंदर कम होना उसको विटामिन डेफिशिएंसी कहते हैं, और विटामिन का बॉडी के अंदर हद से बढ़ जाना इसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं, उसको हम हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें द नेक्स्ट वन वी हैव टू गो फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो हेडिंग दे दे कि विटामिन की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी वाटर सॉल्युबिलिटी एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो हेडिंग दे दे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। अब हम विटामिन की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र की है कि सम विटामिन आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड सम विटामिन आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन। कुछ को हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखें, देयर आर 4 विटामिन विच आर नोन एज फैट सॉल्युबल। मतलब ये सारे के सारे 4 होते हैं। नंबर 1 विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन हाँ जी डी, इसके अंदर क्या होता है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये 4 याद रखने हैं। ये सारे वो विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं। तो टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी इन चारों के अंदर हो सकती है। इन चारों में से अगर टॉक्सिसिटी किसी की और ज़्यादा हो सकती है तो या तो वो विटामिन ए है या विटामिन डी है। इन दोनों की टॉक्सिसिटी चांसेस क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये चारों के चारों नेचर के लिहाज से कौन से विटामिन है? फैट सॉल्युबल है। ठीक है, इस विटामिन ए को हम याद रखें, एक और नाम भी देंगे, इट इज़ आल्सो नोन एज रेटिनोल। इसको क्या कहते हैं? रेटिनोल। इसको कुछ लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं, लेकिन इसका जो सिनोनिमस नेम है वो रेटिनोल है। क्या है? रेटिनोल। तो कल को कोई कहेगा रेटिनोइक एसिड, रेटिनोल, रेटिनॉल, ये सारे जो वर्ड है दे आर अल्टरनेटिवली यूज फॉर विच विटामिन? विटामिन ए। विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीट्रायोल। इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्सीट्रायोल। इसको कैल्सीट्रायोल इसलिए कहते हैं, इट डील विद कैल्शियम लेवल। कैल्शियम की जो रेगुलेशन है वो विटामिन डी करती है। मैंने आप लोगों को फिजियोलॉजी में बताया भी था कि जो ड्यूडिनम है उससे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में किसका काम होता है? विटामिन डी। विटामिन ई, इसको हम कहते हैं टोकोफिरोल। ये इसका दूसरा नाम है, दैट इज कॉल्ड टोकोफिरोल। टोकोफिरोल जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसको कहते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, क्योंकि ये प्लेसेंटा को बहुत सारी न्यूट्रिशन देती है, और प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। तो प्लेसेंटा जो कनेक्शन है जिसके जरिए माँ से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलती है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ई। ठीक है, विटामिन के, इसको हम कहते हैं पाइलोक्विनोन, दैट इज नोन एज पाइलोक्विनोन। इसका सिर्फ एक काम ये है, इट हेल्प इन दी ब्लड कोआगुलेशन। ये ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करती है। कहीं पे कट लग जाए, सब लोग को पता है कट लगने के बाद वहाँ पे इनिशियली जो काम करने वाले सेल है
ان کو प्लेटलेट्स कहा जाता है, और प्लेटलेट्स के साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स आने चाहिए, और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है जिसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, विटामिन के फॉर कोआगुलेशन, के का मतलब कोआगुलेशन है, मतलब पहले लोग कहते हैं के फॉर कोआगुलेशन, तो विटामिन के वो विटामिन है जो ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अब ये 4 आप लोगों ने याद रखने हैं और एमसीक्यूज के अंदर ये बार बार आता है। हाँ जी, अभी तो एक को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ये तो अभी सिर्फ हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, n को हम 1 बाय 1 अभी अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन इतना याद रखना है, विटामिन ए हेल्प इन दी आई साइट, ये कलर विजन के लिए होता है, या डिम लाइट जो विजन है उसमें काम करती है, मतलब रात के वक्त जब तारीकी होती है और लाइट डिम होता है, तो डिम लाइट विजन के अंदर द मोस्ट इफेक्टिव विटामिन इज विटामिन ए। कैल्शियम की डिपोजिशन, बोन को स्ट्रांग बनाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी। फिर आरबीसी को स्ट्रांग बनाना, आरबीसी की लाइसिस को प्रिवेंट करना, और प्लेसेंटा को नरिशमेंट देना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ई। और ब्लड की कोआगुलेशन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन के। इस तरह एक एक याद रखना है। अब आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज विटामिन सी। इसके अंदर क्या है, विटामिन सी। ऑरेंजेस के अंदर, या फॉर एग्जांपल ये जो स्पेशली सिट्रस फूड होता है, या जो विनेगर होता है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप लोग सिट्रस फ्रूट जितनी भी है इंक्लूडिंग जिसमें ये लेमन वगैरह आती है, इन सब के अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये सारे के सारे एमसीक्यूज है, तो प्लीज एवरीवन शुड राइट इट वेरी वेल, ये बायोकेम के अंदर बहुत हेल्प करेगा। और आप लोग इंशाल्लाह 3rd ईयर 4th ईयर में जाओगे ना, लोग कहेंगे बायोकेम हर एक को नहीं आती, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री इज अ ड्राई सब्जेक्ट, तो मैं उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। इसी क्लास से आप लोग ये लिख ले, हर एक चीज आप लोग अपने पास लिख लेंगे, एट द एंड ऑफ द बुक इंशाल्लाह विल बी इजीली यू पीपल कैन रीड योर बुक्स, ठीक है, वो आसान होगी। तो एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम एस्कॉर्बेट भी है, एस्कॉर्बेट, एस्कॉर्बिक एसिड, इन सब को हम क्या कहते हैं, विटामिन सी। सी का मतलब यह है, ये कोलेजन सिंथेसिस में काम करती है। किस चीज में, कोलेजन। कोलेजन इज अ प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, और कोलेजन जो है ये मुख्तलिफ जगहों पे होता है, लेकिन ये उन कोलेजन को ज्यादा बनाता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। कहाँ पे, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल जितने स्ट्रांग होंगे उतना ब्लीडिंग के चांसेस कम होंगे। अब याद रखें, जिन लोगों में विटामिन सी की कमी होती है, विटामिन सी डेफिशिएंसी, उन लोगों के अंदर जो कोलेजन सिंथेसिस है वो कम होता है, और गम्स के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसको स्कर्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कर्वी। वी विल डिस्कस। नेक्स्ट देखें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट आर द विटामिन्स प्रेजेंट इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस? शाबाश, जिसको आते हैं रेज योर हैंड। एक आता है B12, वेरी गुड। नेक्स्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के विटामिन में एक B12 है, और B1 एंड B2, फिर शाबाश B3। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ जी सही है, अब उसको क्या बताए, ठीक है ना। विटामिन B1, B2, B3, फिर B4 नहीं होता, ठीक है, देयर इज B5, ठीक है। क्या होता है, B5, B6 होता है, B7 भी होता है, B8 नहीं होता, देयर इज नो B8, B9 भी है, B10 नहीं है, B11 भी नहीं है, तो B12 है। सो विटामिन B1, हाँ जी, फिर 2, 3, फिर इसके बाद 5 है, 6, 7, फिर 9 है, और देन 12 है, ठीक है। इन सब को एज अ ग्रुप हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्सेस। शाबाश, ये लिख ले। इसमें मैंने आप लोगों से कल इंशाल्लाह क्वेश्चनिंग करनी है, जो जो चीज़ हम पढ़ेंगे एवरीडे आई विल आस्क सम क्वेश्चन इन दैट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। B1, B2, B3, बात नहीं, B5, ठीक है, फिर इसके बाद लेके यहाँ पे B6, विटामिन B7, फिर B8 यहाँ पे एब्सेंट होता है, B9, ठीक है, और आखिर में B12। इन सब को एज अ ग्रुप हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब अगर किसी का सवाल यह है कि सर 4 क्यों नहीं है, तो मेरे हाथ में भी नहीं है, वो बस है ही नहीं, ठीक है ना, और उसका कोई रीजन है, ठीक है। तो ये बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये एक से ज्यादा है, इसलिए हम उसको बी कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अब एक सवाल यह है, एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी, इसका दूसरा नाम क्या है? विटामिन B1 इज आल्सो नोन एज थायमीन, इसका दूसरा नाम क्या है? थायमीन। एक होते हैं THY थायमीन, वो नाइट्रोजिनस बेस होता है, एडेनिन, गुआनिन, याद है कि नहीं, थायमीन एंड साइटोसिन, लेकिन ये THIA है, इसको हम थायमीन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखे राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 इज नोन एज राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B3 इज नोन एज नियासिन, इसको क्या कहते हैं? नियासिन। विटामिन B5 इज नोन एज पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोमीन 5, पेंटोथेनिक एसिड, ये विटामिन B5 है। विटामिन B6 इज नोन एज पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन, ठीक है, पायरिडोक्सिन इज नोन एज विटामिन B6। विटामिन B7 इज नोन एज बायोटीन, इसको क्या कहते हैं? बायोटीन। विटामिन B9 इज नोन एज फोलिक एसिड, इसको क्या कहते हैं? फोलिक एसिड, जिसको फोलेट भी कहा जाता है। और याद रखें विटामिन B12 इज कॉल्ड कोबालामीन, इसको क्या कहते हैं? कोबालामीन, सियानोकोबालामीन, कोबालामीन, मीकोबालामीन, ये सारे के सारे विटामिन B12 होते हैं। तो विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक
آپ لوگوں کا کام یہ ہے، جو کام MCQs میں آتا ہے، کام MBBS کا ہے وہ کر لے کہ بھائی کل کو مجھے کوئی کہے وٹامن B3 کا دوسرا نام بتائے، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ نیاسین ہے، ٹھیک ہے. کل کو کوئی ذکر کرے گا پائریڈوکسین، پتا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ وٹامن B6 کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں بایو کیمسٹری جب ہم نے سٹارٹ کی تھی تو پہلے دن تو ہم نے یہ چیز طے کی تھی کہ وٹامن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس کے نام آنے چاہیے. کل کو آپ لوگوں کو بینر کا پتہ ہوگا، ہیڈنگز کا پتہ ہوگا، تو پھر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ چار جو ہے یہ فیٹ سالوبل ہے، اور یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ واٹر سالوبل. واٹر سالوبل جو وٹامن ہے یہ باڈی کے اندر آتے ہیں، یوز ہوتے ہیں، اینڈ دے ایکسکریٹ اٹ آؤٹ آف دا باڈی ویری کوئکلی ایز کمپیئر ٹو دی فیٹ سالوبل. تو فیٹ سالوبل وٹامن کی باڈی میں رہنے کی چانسز کیا ہوتی ہے؟ زیادہ. اس لیے ہائپر وٹامنوسس کے چانسز کس میں ہوتے ہیں؟ فیٹ سالوبل میں ہوتے ہیں. ابھی ہم ڈسکس کریں گے، اسٹارٹ کریں گے اس لسٹ سے، اس کو ہم 1 بائی 1 پڑھیں گے، پھر ان کو 1 بائی 1 پڑھیں گے. اس لیے بایو کیمسٹری کا 25% جو بک ہے وہ وٹامنز نے بنائے ہیں. تو وٹامن از اے بگ ایریا وچ وی ول کور ان بایو کیم. تو پہلے اب ہیڈنگ دیتے ہیں فیٹ سالوبل وٹامن، وہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے 1 بائی 1، اور جہاں پہ MCQs میں بتاؤں گا وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. پہلے تو یہ لسٹ سارا کا سارا امپورٹنٹ ہے، آج گھر جا کے اس لسٹ پہ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، انشاءاللہ یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. تو یہاں پہ لے کے بگ ہیڈنگ دے دے فیٹ سالوبل وٹامن. اس میں ہم سٹارٹ کریں گے آج کے دن سے، لکھے وٹامن اے، ٹھیک ہے. وٹامن اے، وٹامن اے ہم سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. وٹامن اے کے بارے میں یاد رکھنا ہے، اس کی سورس لکھیں کہ وٹامن اے جو ہے اس کی سورس کیا ہے، کہ 100% وٹامن اے ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے. دیٹ از پریزنٹ ان دی کیرٹس. جو گاجر ہوتے ہیں نا کیرٹس، اٹ کنٹین 100% وائٹامن اے. یہاں پہ لکھے دا بیسٹ سورس دیٹ از آف کیرٹس. یہ MCQs میں آتا ہے 100% وائٹامن اے پیورلی پریزنٹ ان دی کیرٹس. اس کے بعد لکھے لیفی ویجیٹیبلس. جو گرین لیفی ویجیٹیبل ہے اس میں بھی ہمیں کیا ملتی ہے؟ وائٹامن اے ملتی ہے. سیلیڈ کے اندر، لیفی ویجیٹیبلس کے اندر، لیکن اسپیشلی کیرٹس کے اندر جو ہے 100% کیا ہوتا ہے؟ وائٹامن اے ہوتا ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے. وائٹامن اے اس کے فارمز لکھے، اس کے بہت سارے فارمز ہیں جو ہمیں آنے چاہیے. سو وٹامن اے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی فارمز لکھے. مطلب باڈی کے اندر وٹامن اے کے کچھ فارم کو ہم کہتے ہیں ریٹینول. میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ریٹینول کی ذکر جو ہے انڈائریکٹلی کس کی ذکر ہے؟ وائٹامن اے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں ریٹینال. اس کے بعد ہوتا ہے ریٹینال، وی ول ڈسکس دس، ٹھیک ہے. ریٹینال یہ بھی وائٹامن اے ہے. فارمز کا مطلب کہ ڈفرینٹ نیمز. انادر از کالڈ ریٹینوئک ایسڈ. ایک کیا ہوتا ہے؟ ریٹینوئک ایسڈ، ٹھیک ہے. Another very important thing اس میں آپ لوگ لکھیں another form of vitamin A is known as isotretinoin. کیا ہوتا ہے؟ isotretinoin. یہ بھی وائٹامن اے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک سٹار لگا لیتا ہوں. سٹار اس لیے لگاتا ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے. isotretinoin کی بات جو بھی کرے گا دس از دی what ڈرگ فارم یا میڈیکل فارم آف وائٹامن اے. جو ہم خوراک میں لیتے ہیں وہ isotretinoin نہیں ہے. جس بندے کے وائٹامن اے ڈیفیشنسی میں میڈیسن دی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ isotretinoin. یہاں پہ لکھیں تھیراپیوٹک فارم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تھیراپیوٹک. ٹریٹمنٹ میں جو ہم وائٹامن اے دیتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ isotretinoin. اس کو تھیراپیوٹک فارم کہتے ہیں. کون سا؟ اوکے، اکارڈنگ ٹو ہر یہ سنتھیٹک ہے کہ نیچرل ہے. تو ہم کہاں سے دیتے ہیں؟ ہاں باہر سے دیتے ہیں. خوراک میں لیتے ہیں کہ میڈیسن؟ اور میڈیسن تو ہم بناتے ہیں، سو دیٹ از ڈیفینیٹلی سنتھیٹک فارم، ٹھیک ہے. وہ تو ہم بناتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو isotretinoin کیا ہے؟ یہ تھیراپیوٹک فارم ہے جس کو ہم باہر سے دیتے ہیں فار ڈیفیشنسیز آف وائٹامن اے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بریکٹ میں لکھے دیٹ از اورل فارم. یہ کیا ہوتا ہے؟ اورل فارم. ٹیبلٹ کی شکل میں دیتے ہیں. بہت سارے پیشنٹ آتے، ایکنی کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ ان کے یہاں پہ مطلب جب وہ پیوبرٹی میں پہنچ جاتے ہیں 15 سال 16 سال کے بعد ان کے یہاں پہ دانے نظر آ جانا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ریڈ رہے، اس کو ایکنی کہتے ہیں. ایکنی کے اندر دا بیسٹ ٹریٹمنٹ از وائٹامن اے، کیونکہ اسکن کی ٹیکسچر کو مینٹین کرتا ہے. تو دوسری بات یاد رکھیں، جو ایکنی ہے اس میں ہم وائٹامن اے ٹوپیکل دیتے ہیں. ٹوپیکل سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئنٹمنٹ کی شکل میں، کریم کی شکل میں وائٹامن اے دیتے ہیں اور جگہوں پہ لگاتے ہیں. اینی میڈیسن وچ یو اپلائی آن دیٹ لیجن دیٹ از کالڈ ٹوپیکل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹوپیکل. وہ میڈیسن جو ہم وین میں دیتے ہیں اس کو انٹراوینس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انٹراوینس. یا اس کو ہم کہتے ہیں انجیکٹیبل میڈیسن. کیا کہتے ہیں؟ انجیکٹیبل. اور وہ میڈیسن جب ہم مطلب میڈیسن کھاتے ہیں اس کو اورل فارم کہتے ہیں. وٹامن اے کی اگر ذکر isotretinoin کی شکل میں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہ کریم فارم میں ہے، نہ یہ ٹوپیکل فارم میں ہے، نہ انجیکٹیبل، یہ اورل فارم میں ہوتی ہے. تو وٹامن اے کی ٹیبلٹ ہم مائلڈر کیس میں نہیں، سیویئر کیس میں دیتے ہیں. جب وٹامن اے کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم ٹوپیکل کے ساتھ ساتھ اورلی بھی سٹارٹ کرواتے ہیں. اور اورل فارم آف وٹامن اے کیا ہے؟ وہ isotretinoin ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ذکر آگے آئے گی، اینڈ دیٹ ول بی آج کے دن سے لکھ کے لے جانا. ایگزام میں یونیورسٹی کے اندر
NAV एग्जाम में, NLE में इसका ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। इसीलिए कि अभी से मैं आप लोगों के दिमाग में पुट करूँ कि ISO 39 अगर कि ओरल फॉर्म ऑफ विटामिन ए है, लेकिन ये हम प्रेगनेंसी के अंदर कभी भी नहीं दे सकते। ये MCQ आता है क्योंकि ये ISO 39 प्रेगनेंसी के अंदर किसको क्रॉस कर सकती है? प्लेसेंटा, और ये जाकर बच्चे के अंदर लिम्स की, अपर लिम्स की डेवलपमेंट को खराब करती है, उसकी किडनी डेवलपमेंट को रोकती है। इसलिए ISO 39 इस फीटोटॉक्सिक, ये क्या होता है? फीटोटॉक्सिक, जो बच्चा बनता है यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी में उसको डैमेज करा सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर ISO 39 इज द नॉट अ बेस्ट चॉइस फॉर विटामिन ए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर में, एग्जाम के अंदर एग्जामिनर लव टू दिस ISO 39। अनदर फॉर्म ऑफ विटामिन ए दैट इज कॉल्ड बीटा कैरोटीन। एक का नाम क्या है? बीटा कैरोटीन। एक को हम बीटा कैरोटीन कहते हैं। तो जब भी बीटा कैरोटीन की जिक्र आती है, यह भी विटामिन ए की एक फॉर्म होती है। यहाँ पे एक MCQ आता है कि कैरेट के अंदर या सब्जी के अंदर जो मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ विटामिन ए है वो बीटा कैरोटीन की शक्ल में होता है। किसकी शक्ल में? बीटा कैरोटीन। तो आप लोग इसके सामने ब्रैकेट में लेके प्रेजेंट इन दी डाइटरी फॉर्म, जो डाइट हम लेते हैं डाइटरी फॉर्म के अंदर विटामिन ए की शक्ल में ज्यादा होती है, बीटा कैरोटीन की शक्ल में होती है। अब देखें, एक्चुअली पॉइंट टू बी नोटेड कि वन बीटा कैरोटीन gives rise to हाँ जी टू रेटिनोल। इसका मतलब यह है कि एक बीटा कैरोटीन को अगर हम ब्रेक करें तो उससे हमें कितने रेटिनोल मिल सकते हैं? 2 रेटिनोल। सो वन बीटा कैरोटीन जो हमें डाइट से मिली होती है उसको ब्रेक करके हम कितने रेटिनोल बना सकते हैं? 2 रेटिनोल बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक और MCQ आता है। यहाँ पे एक कंसेप्चुअल पॉइंट लेके, कंसेप्ट से लिहाज देखें, एक्चुअली अगर हम बॉडी के अंदर किस चीज़ को बनाएं, बस रेटिनोल, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए रेटिनोल, ओल मीन अल्कोहल, इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। अब वो केमिस्ट्री है, इतनी हमें डीपली नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को हम कन्वर्ट करें अल्डिहाइड पे, किस चीज़ में? अल्डिहाइड, नाम तो सुना है ना। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को अगर हम किस पे रिमूव करें, बस अल्डिहाइड पे कन्वर्ट करें तो इसका नाम रेटिनॉल बन जाए, आल मीन अल्डिहाइड, ठीक है ना। सो सिर्फ ये रेटिनॉल और रेटिनॉल, इसकी जो डिफरेंस है वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होता है। अब यहाँ पे एक MCQ याद रखना है कि वी कैन कन्वर्ट रेटिनॉल इनटू रेटिनॉल, लेकिन अगर हम चाहे तो हम रेटिनॉल को वापस भी किस में कन्वर्ट करते हैं? रेटिनॉल में। तो रिवर्सेबल इरिवर्सेबल, इट इज अ रिवर्सेबल रिएक्शन, ये एग्जाम में आता है। लेकिन वंस वी फॉर्म रेटिनॉल, इस रेटिनॉल को हम आगे कन्वर्ट कर सकते हैं रेटिनोइक एसिड में। किस चीज़ में? रेटिनोइक एसिड। अब देखें ना इन 3 फॉर्म्स को। बीटा कैरोटीन हम कहाँ से लेते हैं? बीटा कैरोटीन कहाँ से लेते हैं? डाइट से, क्योंकि कैरेट्स के अंदर, डाइट के अंदर डाइटरी फॉर्म क्या है? बीटा कैरोटीन। इसको बॉडी ब्रेक करती है किसकी शक्ल में? रेटिनोल। दिन रेटिनोल वी कैन कन्वर्ट इनटू रेटिनॉल एंड वी कैन कन्वर्ट रेटिनॉल इनटू रेटिनोइक एसिड। देखिए वो फॉर्म आ गए कि नहीं? ये सारे इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना है जब हम रेटिनॉल को किस में कन्वर्ट करें? रेटिनोइक एसिड, इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये इरिवर्सिबल स्टेप है, ऊपर वाला रिवर्सिबल स्टेप है और ये इरिवर्सिबल स्टेप है। ये आप लेपन कार्ड पढ़ेंगे उसके अंदर भी इसका नहीं लिखा है, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी जगहों पे मैं कहता हूँ ना, बात सुने, विटामिन ए हेल्प इन इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है। विटामिन ए मेंटेन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्किन, विटामिन ए मेम्ब्रेन स्मूथनेस ऑफ द स्किन, विटामिन ए मेंटेन GIT म्यूकोजा। जितने भी फंक्शंस है विटामिन ए के, इट ऑल बिकॉज ऑफ विच फॉर्म? रेटिनोइक एसिड। जो इसका परमानेंट फॉर्म है ये जाकर वहां पे काम करेगा और हमें प्रॉब्लम देगा। अब देखें सवाल ये है, विटामिन ए हेल्प इन दी विजन, ये किस में काम करती है? विजन में। तो हम एक चीज को जब देखते हैं तो पूरी जिंदगी देखते रहते हैं कि हमें एक चीज की बजाय दूसरे मिनट में नेक्स्ट जगह पे देखते हैं, और आंखों को हम ओपन एंड क्लोज करते हैं रिपीटेडली। तो अगर मैं आंख क्लोज करूं तो ऑब्जेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, तो विटामिन ए जो है अंदर काम नहीं करेगी। जब मैं देखूंगा तो विटामिन ए काम करेगी। तो विटामिन ए का वो फॉर्म मेरे आंख में काम करने के लिए चाहिए जो इरिवर्सिबल हो कि रिवर्सेबल हो, ताकि वो अपने आप को चेंज करते जाए, ताकि हमारी विजन दूसरों चीज़ों को हम इस तरह घुमाएं और वो चीज़ों को चेंज। द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए टू कंट्रोल विजन वो रेटिनॉल है। वो क्या है? रेटिनॉल। विजन के अलावा जितने भी फंक्शन है विटामिन ए के, वो किसकी वजह से होती है? रेटिनोइक एसिड की वजह से होती है। अब ये MCQ आता है, तो यहाँ पे इसके सामने ब्रैकेट में लेके रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ये विजन के लिए होता है। असल में यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा डीपली तो नहीं जाता, लेकिन ये जो रेटिनॉल है ये आई के अंदर एक प्रोटीन बनाता है, उसको रोडोप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोडोप्सिन। और जो रोडोप्सिन प्रोटीन है, ये रोड जो है ये हमारे रेटिना के अंदर सेल्स होते हैं। इधर देखें, थोड़ा सा आप लोग को मजीद लेके जाओ। रेटिना नाम सुना है कि नहीं? रेटिना इज दी पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, ये आंख का पिछले वाला हिस्सा होता है। इट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने? 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड रॉड सेल्स। कौन से? रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ये नाम सुने हैं?
कौन सेल्स, ये डे लाइट विजन में काम करता है, ये डिम लाइट विजन में काम करता है, ये नाइट विजन को कंट्रोल करता है, ये डे लाइट विजन को कंट्रोल करता है। इस रॉड सेल के ऊपर ये देखें, ये रॉड सेल है। अब ये जो रॉड सेल है इसके साथ यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन पहले से आइज में होता है, उसको ऑप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्सिन। जब तक ये ऑप्सिन हम किस पे अटैच ना करें? रॉड सेल पे। अब रॉड सेल का किसके साथ अटैच होना? हाँ जी, ऑप्सिन, दैट इज कॉल्ड रॉड ऑप्सिन। और इनकी अटैचमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? रेटिनॉल चाहिए। और जब रॉड ऑप्सिन बनता है देन रॉड सेल बिकम एक्टिवेटेड एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट स्पेशली इन द डिम लाइट विजन। So actually for combination of rod cell and opsin we need the function of retinol and retinol is vitamin A। और विटामिन ए को जनाब काम करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए कि बाहर से जो विटामिन ए आई है वो रेटिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाए? रेटिनॉल में। मेरी बात समझ रहे हैं? और रेटिनॉल जो है वो आई के अंदर रॉड सेल के साथ किसको मिलाता है? ऑप्सिन के साथ मिलाता है ताकि हमें ऑब्जेक्ट को नजर आ सके। ये कौन सेल पे काम नहीं करता, ये किस पे काम करता है? रॉड सेल पे। और रॉड सेल वो है जब तारीकी होती है, तारीकी में जो डिम लाइट विजन है, नाइट विजन है, उसको कंट्रोल करती है। इसलिए विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है, बात और से सुने, इसमें ब्लाइंडनेस नहीं होती, उसमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत सारे लोग आप लोग देखेंगे फील्ड में, वो कहेंगे दिन में हम ठीक होते हैं, लेकिन जब तारीकी होती है या सनसेट का टाइम आता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें गार्बेज आए वरना हमको बाद में नजर नहीं आती। वो दिन में ठीक होते हैं बिकॉज देयर कोन सेल्स आर वर्किंग, बट जब सनसेट का टाइम आता है, मतलब सूरज जनाब वो गुरूब हो रहा होता है, तो क्या होता है? उन लोगों को फिर जनाब सही तरीके से चीज़ें नजर नहीं आती। तो वो कहते हैं हम घर जल्दी जाना चाहते हैं क्योंकि बाद में जब तारीख होती है तो हम चीज़ों को देख नहीं सकते। उनमें किस चीज़ की कमी हो सकती है? विटामिन ए। कुछ लोगों में विटामिन ए ठीक होता है फिर भी वो रात को नहीं देख सकते। इसका वजह यह है विटामिन ए इज देयर बट फॉर विटामिन ए देयर इज नो ऑप्शन, ऑप्सिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ लोगों में ऑप्सिन भी ठीक होता है, कौन से सेल अंदर से खराब है? रॉड सेल। तो डिम लाइट विजन कंट्रोल करना ये विटामिन ए का काम है, वी नो दैट। बट डिम लाइट विजन में चीजें नजर ना आना, इसका एक वजह क्या है? विटामिन ए डेफिशिएंसी है। बट माई स्टेटमेंट शुड बी रिमेंबर्ड एंड शुड बी पुट इन योर माइंड कि all night vision are not due to vitamin A deficiency. It may be rod cell problem or it may be opsin problem, but it may be also vitamin A deficiency. ठीक है जी, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद इन चीज़ों को जहन में रखते हुए याद रखना है। अब लेकिन फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, कि विटामिन ए के जनाब काम क्या है, इसकी जनाब फंक्शंस क्या है। सो विटामिन ए या इसमें फंक्शंस जनाब लिख रहे हैं कि व्हाट विटामिन ए डू फॉर द बॉडी, फंक्शंस लिखे कि फंक्शंस ऑफ विटामिन ए क्या है। ये फॉर एग्जांपल बॉडी के लिए कौन कौन से काम कर रहे हैं। नंबर 1, इट हेल्प इन दी नाइट विजन। ये किस में काम करता है? नाइट विजन में। तो यहाँ पे लिखे हेल्प इन नाइट विजन। नाइट विजन से मुराद डिम लाइट विजन है, तो ये डिम लाइट विजन या नाइट विजन में काम करते हैं। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, नाइट ब्लाइंडनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, और प्रैक्टिस में जब आप लोग इंशाल्लाह आगे हॉस्पिटल में जाएंगे, बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। मतलब बहुत से ज़्यादा लोग आते हैं, वो कहते हैं बस हम मीट ही खाते हैं, चिकन खाते हैं, वो सब्जियों को देखते ही नहीं है। और सब्जी के अंदर अगर कैरेट की इंटेक क्या हो जाए, कम हो जाए, तो लॉन्ग रन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी चांसेस ज़्यादा होती है। विटामिन ए अगर हम गाजर 2 दिन ना खाए, 1 साल भी ना खाए, तो हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर पहले से विटामिन ए होती है जो लीवर स्टोर करती है। कौन सी? लीवर। और वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करती है टू मेंटेन द डिम लाइट विजन। लेकिन अगर सालों साल बाद, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन स्टे इन द बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम, तो लॉन्गर टाइम का मतलब वो स्टोर कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रांसफ्यूज करती है। अगर हम यूज जो है वो करते जाए और इनटेक ना करें तो लॉन्ग रन में इसकी डेफिशिएंसी चांसेस ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ माइंड में बिठा लें, फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी नॉट सीन इन द पेशेंट विद इन डेज और विद इन वीक्स, इट सीन्स आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड फ्यू ईयर्स। ये कुछ महीनों कुछ सालों के बाद आती है, क्योंकि दीज विटामिन प्रीवियसली स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, इसका कंसेप्ट ये है। नेक्स्ट देखें, इसके साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ स्किन सर्फेसेस, म्यूकोजल सर्फेसेस, स्किन सर्फेसेस, मेंटेन स्किन सर्फेस एंड म्यूकोजल सर्फेस। इसका मतलब यह है हमारे बॉडी के अंदर जो म्यूकोजा है और स्किन सरफेस है, इसकी टेक्सचर को मेंटेन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का एक काम यह है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्किन की जो टेक्सचर है वो भी खराब हो जाएगी। टेक्सचर से मुराद एक शेप जो है, एक स्मूथनेस जो है, और जो अंदर से म्यूकोजा है, माउथ म्यूकोजा, जेटी म्यूकोजा, उसकी कंटिन्यूटी में डैमेज आएगी कि नहीं? ब्रेक्स आएगी। इसलिए विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन कॉज माउथ अल्सर्स एंड जेटी अल्सर्स। ये क्या करा सकती है? अल्सर्स कराती है। हम फिर कहते हैं कि यार कुछ खाया नहीं जाता, कुछ पिया नहीं जाता, क्योंकि मेरी माउथ के अंदर चारे हैं, इसका मतलब अल्सर्स है। और अल्सर्स का एक वजह किस चीज़ की डेफिशिएंसी है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट एक है एनहांसेस इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, अभी मैंने कुछ देर पहले जिक्र की है। तो यहाँ पे लिखे एनहांसेस इम्यूनिटी। इसका मतलब यह है कि जो विटामिन ए है इट इम्यूनिटी को एनहांस करता है। इम्यूनिटी इन अ सेंस इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम मल्टीपल इन्फेक्शन। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है
ہماری قوت مدافعت مضبوط ہے تو ہمیں انفیکشن کے چانسز کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہیں. تو یہ امیونٹی کو بوسٹ کر کے ہمیں ری اکورنٹ انفیکشن سے پریونٹ کر دیتی ہیں. سو دیز آر دا مین فنکشن. اب آپ لوگ ایگزام میں بیٹھے ہیں یا ٹیچر کے سامنے سوال کا جواب دے رہے, اگر ساری چیزیں بھول جائے, ایک چیز یاد رکھے, دس از دا وٹامن فار ویژن. یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ویژن کے لیے, اسپیشلی فار ڈم لائٹ ویژن. اگر ہمیں کسی وٹامن کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ وٹامن اے ہوتا ہے. سو فار می دا اسٹرانگیسٹ فنکشن اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف وٹامن اے نائٹ ویژن میں ہیلپ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں دا موسٹ امپورٹنٹ کہ وٹامن اے کی یوزز. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم وٹامن اے کو میڈیسن کی شکل میں استعمال کرتے ہیں. تو لے کے یوزز آف وچ وٹامن, ویری گڈ, یوزز آف وٹامن اے. ٹھیک ہے, دیکھیں ریسنٹلی پی ایم ڈی سی کا ایک ایگزام ہوا ہے, این اے بی والا, اور ایک آنے والے 20 کو بھی ہے این ایل ای والا. بایو کیم کے جتنے کوشچن اس میں آئے ہیں, ہم جب وٹامن ختم کریں گے میں آپ لوگوں سے وہ حل کرواؤں گا. اگر ابھی سے وہ کوشچن آپ لوگ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ 3-4 سال بعد وہ آپ لوگ 1 2 3 لگیں گے. ٹھیک ہے, اور جو ایم سی کیوز آ جائے ہے وہ سال بعد بھی آئے گا, 2 سال بعد بھی آئے گا. جسٹ اس کے لیے آپ لوگوں کی پریپریشن اچھی ہونی چاہیے. تو جو ایم سی کیوز مجھے لگے کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ آتے ہیں وہ اسی دن آپ لوگوں کو حل کرواتا جاؤں گا. ٹھیک ہے, جس سے آپ لوگوں کی پریپریشن ہوگی. یوز میں لکھے وٹامن اے یوزڈ ان دا ٹریٹمنٹ آف ایکنی. یہ ہم کس میں آتے ہیں؟ ایکنی میں. تو یہاں پہ لکھے ٹریٹمنٹ آف ایکنی. ایکنی جو ہے یہ ایک ڈرمیٹولوجیکل پرابلم ہے, اسکن پرابلم ہے, جو پیوبرٹی کے ٹائم پہ, بلوغت کے وقت کچھ لوگوں میں اسکن کے اوپر یہاں پہ پمپلس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اسپیشلی ریڈ پمپلس. کچھ لوگوں میں خاندانی مسئلہ ہوتا ہے, مطلب اس کے بھائی کو بھی ہوتا ہے تو اس کی بہن کو بھی ہو جاتی ہے, یا اس کے خاندان میں پہلے سے کسی کو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ایکنی 80% پریزنٹ ان دا جینیٹکس پرابلم, یہ جینیٹک میں آتا ہے. لیکن ایکنی از ناٹ اے ڈیزیز. صرف ایکنی میں یاد رکھے یہ آتی ہے لیکن ود دا ٹائم 3 سے 4 سال کے بعد کمپلیٹلی ختم ہو جاتی ہے. Acne do not transform into cancers. Number 1 point. Acne do not transform into various conditions. اس سے کوئی بیماری ارائز نہیں ہوتی until unless اگر اس کو ہم ڈیمیج نہ کریں. اس کا صرف ایشو کیا ہے؟ یہ اسپیس پہ ہوتی ہے, تو ہماری جو کاسمیٹک ویلیو ہے اس کو خراب کر دیتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, صبح سویرے اٹھ کے جب شیشے میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دانا, یہاں پہ لائٹ, یہاں پہ لائٹ, ٹھیک ہے نا, دانے ہوتے ہیں نا. تو ہم یہ کیا سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سامنے والا جو میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ یہ نہ کہے کہ یار آپ کی فیس پہ کتنے دانے ہیں. یہ کیا ہے؟ سائیکولوجیکلی وہ بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے, تو پھر اس دانوں کو وہ چیڑتا رہتا ہے, کبھی یہاں سے ریموو کرتا ہے, کبھی یہاں سے ریموو کرتا ہے. اور ہماری اس نیل کے اندر thousands of bacteria are there, کیونکہ ہم ہاتھ کہاں پہ نہیں بادام پر ٹچ کرتے, اور وہی ایکنی کے دانے کو جب ہم پنچ کرتے تو وی آر انٹروڈیوسنگ ملینز آف بیکٹیریا. اور جب صبح سویرے جس نے دانے کو خراب کیا ہوتا ہے, پریکٹیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں, صبح سویرے آپ دیکھیں تو اسی دانے کے اندر پیپ بن جاتا ہے, پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے وہ پھر پانی کرتا ہے وہ ایریا, اور اس میں جناب پس بن جاتی ہے, اس کے اندر پیپ بن جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو کیا دیا ہے؟ بیکٹیریا دیا ہے. اینڈ بیکٹیریا کین کاز پس فارمیشن. تو پھر وہی بندہ پھر کیا کرتا ہے کہ یار ابھی اس کو نہ ٹچ کر سکتا ہے, اور جب وہ بار بار یہ کام کرے گا, ایکنی کچھ ہفتوں میں ٹھیک ہوگی یا کچھ سالوں میں ٹھیک ہوگی, 2 سال 3 سال کے بعد. تو اٹ از ایکیوٹ پرابلم یا کرونک ہے, فار لانگر ٹائم ہے. ایکیوٹ مین شارٹ ٹائم, کرونک مین لانگر ٹائم. تو آپ لوگوں کے خیال میں جب بندہ روز یہ کام کرتا جائے گا تو اپنی اسکن کے اندر کیویٹیز بنائے گا, چھوٹی اس طرح کیویٹیز بنائے گا. اس کو سیسٹک ایکنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیسٹک. اور ایک دفعہ اسکن کے اوپر فیس میں داغ بن جائے وہ پوری زندگی رہتی ہے پھر, ٹھیک ہے, وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا until unless you do not go for پلاسٹک سرجری. اور پلاسٹک سرجری تو پھر ہماری بس کی بات نہیں ہے, وہ بہت ایکسپینسو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکنی کے دانے جتنے بھی ہوتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ میں بتا رہا ہوں کیا ہے. کلینڈا اے کے نام سے کریم آتی ہے, کلینڈا اے. کلینڈا اے سے مراد یہ ہے اس میں کلینڈا مائسین ہوتا ہے تاکہ وہاں پہ انفیکشن نہ ہو, اور اے مین وائٹامن اے ہے. تو کلینڈا اے کریم ہوتا ہے. اسی کریم کو ایسا نہیں کہ آپ فیس واش کی طرح پورے فیس پہ نہیں, اسی کلینڈا پہلے جب آپ لگاتے ہیں تو ہاتھ کو دھوئیں, ہاتھ کو صاف کرے, اسی کریم سے تھوڑا سا لے کر بالکل پین پوائنٹ اس جگہ پہ لگائے جہاں پہ دانا ہے, نارمل اسکن پہ نہ لگائے, ٹھیک ہے. اب آپ لگائے اور رات کو سوئے, ٹھیک ہے, تو اس دانوں کی جو سیویریٹی ہے وہ کم ہوتی جائے گی ود دا ٹائم. اور کلینڈا اے کریم کے ساتھ اپنا کیرٹ انٹیک جو ہے یا اس طرح ویجیٹیبل انٹیک جو ہے وہ بھی بڑھائیں, کیونکہ ڈائٹری وٹامن اے ہے. اور تیسری بات آپ لوگ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ نارملی ایکنی کے جتنے بھی لوگ کلینک میں آتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ عام سوپ کا استعمال نہ کریں, کیونکہ عام صابن کے استعمال سے ایکنی کے دانے مزید بڑھتے ہیں, کیونکہ عام صابن کے اندر کیمیکل ہے, انگریڈینٹس ہے, اینڈ دا ڈیمیج دا ایکنی. اس میں ایکنی 8 سوپ آتا ہے, ایکنی بار سوپ آتا ہے. یہ سارے جو ایکنی کے لیے اپنے کسی بھی فارمیسی میں جا کے ایکنی سوپ دے دیں, بہت سارے ایکنی کا جو سوپ ہے نا, صابن ہے, آپ اس کو اسمیل کریں گے اس سے بو نہیں آتی, لیکن عام صابن کو اسمیل کرے اس سے بو آتی ہے. جس صابن سے بو زیادہ آتی ہے اس میں اتنی انگریڈینٹ زیادہ کیمیکل ہوتی ہیں. میری بات سمجھ گئے؟ فریگننس کے لیے کچھ چیزیں ملائی جاتی ہے کہ نہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ارک گلاب کا فریگننس ہے یا اسٹرابری ہے, پلانا ڈینگ, یہ سارے کے سارے کیمیکلز ہیں. تو جسٹ آئی وانٹ ٹو فنش آن دس نوٹ کہ ایکنی کے لیے کلینڈا اے کریم آتا ہے, اور ساتھ میں سوپ جو ہے وہ نارمل یوز نہیں کرنا ہے, ایکنی 8 سوپ یوز کرنا ہے, کیونکہ پبلک کا بہت زیادہ پرابلم ہے. اور ساتھ میں
वरीड ना होना, डिप्रेस ना होना कि दूसरा क्या कहेगा। दूसरा तो तब भी कहेगा जब आपकी फेस ठीक होती है, उसने तो कहना है ना। अगर उसकी वजह से आप अपने आप को बिगाड़ेंगे तो दैट इज डैमेजिंग, ठीक है ना। तो कोशिश ये है, और इंसान इसकी साइकी डिप्रेशन में चली जाती है, यार नहीं नहीं यार मैं तो अब ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता। इसको कहते हैं, पता है इसको क्या कहते हैं? बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम। क्या कहते हैं? बॉडी डिस्मॉर्फ। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? स्ट्रक्चर। डिस मीन एबनॉर्मल, वो मसला जो दूसरे ने कभी सोचा नहीं है और तुम उसके लिए सोचे कर रहे हो, इसको बॉडी डिस्मॉर्फिक कहते हैं। भले आप किसी के साथ उठ बैठ जाते हो, उसने पूरी जिंदगी उसको आपकी जो है तरफ नहीं देखा, यार ये क्या है ये, और आप अपनी ज़हन में सोच रहे हो कि अब ये मेरे तरफ देख, इसने यही सोचना है, तो इसको बॉडी डिस्मॉर्फिक कहते हैं। और बहुत सारे लोग साइकेट्रिक इलनेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्पेशली जो मॉडलिंग वाली ये लोग होते हैं, मतलब उनमें भी तो एक्नीज आती है, तो वो लोग फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। सो एक्नी के लिए द बेस्ट ट्रीटमेंट इज क्लिंडामाइसिन प्लस विटामिन ए, क्योंकि स्किन की जो टेक्सचर है फेस के अंदर, उसकी सरफेस मेंटेन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए। अगर एक्नी के ऊपर एक फीमेल, जिस तरह एक हफ्ते पहले एक फीमेल मेरी ओपीडी में आई और उसकी फेस पे इतने दाने, तो उसमें पस वो टच नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन। आप उसमें क्या करते? आइसोट्रेटिनोइन को स्टार्ट करते ओरली, लेकिन यू शुड आस्क अबाउट प्रेगनेंसी। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तब आप जाकर वो स्टार्ट करवा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आइसोट्रेटिनोइन कैन क्रॉस दी प्लेसेंटा, वो फीटोटॉक्सिक है, तो वो हम प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते। तो मेरी बात ये आप लोग को तक पहुंचना चाहिए कि आम एक्नी में क्लेंडा ए क्रीम देते हैं। अगर उसमें पस बन चुकी है, उसने खराब किए हैं दाने, तो क्लेंडा ए क्रीम के साथ ओरली भी हम विटामिन ए स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें एनदर कंडीशन, एक्नी के बाद लेके प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मीजल। ओके, ये जो एक्नी है, इसकी जो दाने हैं, इट कैन वर्सन अलॉन्ग विद द फूड, मतलब मिर्ची वाली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें या फास्ट फूड, इन चीज़ों के साथ एक्नी के जो लीजन है उसकी सिविरिटी या शिद्दत में इंक्रीज आती है। इसलिए कहते हैं कि बाजार से चीज़ें ना खाएं, मसाले कम इस्तेमाल करें, मिर्चें कम इस्तेमाल करें, तब जाकर एक्नी के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर शेव जो दाने आते हैं उसको शेव एलर्जी कहते हैं। वो इस तरह रेड कलर के दाने आते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाते हैं, वो एक्नी नहीं होती, वो तो बियर्ड एरिया में आते हैं, और ये इस एरिया में होते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो शेविंग, इसलिए तो शेविंग क्रीम आती है, शेविंग रेजर जो है ना, उसकी हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, इसमें सारी चीज़ें, वो अलग चीज़ है जो आप बता रहे हैं, लेकिन एक्नी समथिंग एल्स, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ व्हाट? प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मीजल्स इन्फेक्शन। मीजल वायरस का नाम सुना है? मीजल्स ये एक वायरस है जो इन्फेक्शन कराती है बच्चों के अंदर। सो मीजल वायरस इन्फेक्शन दैट इज कॉमनली सीन इन बेबीज। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है ट्रीटमेंट, एक होती है प्रोफाइल एक्सेस। प्रोफाइल एक्सेस का मतलब ये है, एक बच्चा है वो घर में रहता है, ठीक है, और उसके साथ दो और भी बच्चे हैं उसी घर में। एक बच्चे को मीजल है, कौन सा इन्फेक्शन है? मीजल। साथ में उसका जो दूसरा भाई है या कजन है जो घर में रहता है, उसको मीजल नहीं है। अब इस बच्चे को रिस्क तो है कि उस बच्चे से उसको क्या लग जाए? मीजल लग जाए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बता रहा हूँ। इन्फेक्शन एक बच्चे को है, दूसरे बच्चों को नहीं है। एक इन्फेक्टेड है और दूसरे नॉन इन्फेक्टेड है, लेकिन नॉन इन्फेक्टेड बच्चे रिस्क में है कि नहीं कि उसको भी मीजल हो जाए। तो ऐसा मेडिसिन देना नॉन इन्फेक्टेड बच्चों को, जिसपे हम किस डिजीज चांसेस को प्रिवेंट करें? मीजल, वो विटामिन ए है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब बचाव के लिए, ट्रीटमेंट के लिए नहीं। किसी बीमारी की बचाव के लिए जो ड्रग दी जाती है उसको हम प्रोफाइल एक्सेस कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो एक ट्रीटमेंट होता है और एक प्रोफाइल एक्सेस होता है। टीबी एक बंदे से दूसरे को लग सकती है कि नहीं? घर में एक बंदे को टीबी है, वो आपके सामने कान से, वो आपके सामने मतलब शींग व स्नीजिंग वगैरह, कफ वगैरह, तो टीबी लग सकती है कि नहीं? तो टीबी का मरीज तो अलग ट्रीटमेंट लेगा, लेकिन घर में जो बंदा रहता है, ऑफिस में बंदा काम करते हैं, उसको हम अलग ड्रग देते हैं ताकि उसको टीबी ना लग जाए। कोरोना वायरस इन्फेक्शन एक से दूसरे को लग सकती है कि नहीं? तो कोरोना जिसको है वो तो ठीक है, वो तो हॉस्पिटल एडमिट है। घर में जो लोग रहते हैं उसको भी एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है ताकि उन लोगों में पहले से हम उस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बिल्ड करें ताकि एक बंदे से दूसरे को ना लगे। तो ऐसी ट्रीटमेंट जिसमें हम किसी बीमारी की रोकथाम करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, उस ट्रीटमेंट को हम प्रोफाइल एक्सेस कहते हैं। तो एग्जाम में ये बात एमसीक्यूज में बार बार आता है, विच विटामिन यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मीजल वायरस इन्फेक्शन? वो विटामिन ए है। क्या है? विटामिन ए है। हाँ, सवाल क्या है? नो, इट इज नॉट अ वैक्सीन, इट इज प्रोफाइलेक्टिकल। वैक्सीन चाहे बीमारी की आपको रिस्क हो या ना हो, हम देते हैं। अब बच्चा है वो पैदा हो जाता है, आफ्टर द बर्थ उसको बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है ताकि उसको आने वाले टाइम में टीबी ना हो जाए, या उसको एमएमआर लगाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी बीमारियां जिससे बच्चे को रिस्क हो या ना हो हम लगा लेते हैं, उसको हम कहते हैं वैक्सीन। और जो मतलब ट्रीटमेंट ऐसी जगह पे दी जाए जहां पे पहले से रिस्क हो, उसको प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। वो वैक्सीनेशन नहीं होती, वो इट एक्ट लाइक वैक्सीन बट वी शुड नॉट पुट दिस इन द कैटेगरी ऑफ वैक्सीन, ठीक है जी। वैक्सीन अलग चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट देखे अनदर थिंग यूज इन दी देखिए, ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब ट्रीटमेंट है। क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये हम किस में दे सकते हैं?
एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिसको हम कहते हैं AML। क्या कहते हैं? AML। एनीवन इन द क्लास व्हाट इज ल्यूकीमिया मीन? ल्यूकीमिया का मतलब क्या है? शाबाश, हाँ बताएं, ट्राई करें, शाबाश। व्हाट इज ल्यूकीमिया? ब्लड क्या है? हाँ हाँ, वाइट डेफिशिएंसी, उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया। दिस इज ल्यूकीमिया। हाँ जी, ल्यूकीमिया इज अ वाइट ब्लड सेल कैंसर, ठीक है। मतलब अगर वाइट ब्लड सेल की कैंसर हो जाए और कैंसर के अंदर हर एक सेल की जो लेवल है या नंबर है वो अनरेगुलेटेडली ओवर प्रोलिफरेटेडली क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ल्यूकीमिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय वाइट ब्लड सेल कैंसर। WBC की कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? और WBC की जो सिंथेसिस है वो बॉडी के अंदर बोन मैरो में होती है। कहाँ पे होती है? बोन मैरो। हमारे जितने भी लॉन्ग बोन्स है उसके अंदर एक मैरो होती है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। एंड बोन मैरो आर दी फैक्ट्री फॉर दी ब्लड सेल सिंथेसिस इंक्लूडिंग RBC, WBC एंड ऑफ प्लेटलेट्स। ये सारे के सारे कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने आप लोगों को आयरन एब्जॉर्प्शन सिखाया था। जब आयरन एब्जॉर्ब हो जाए ड्यूडिनम से तो ट्रांसफरिन याद है कि नहीं? वो उस आयरन को पकड़ता है, अगर हमें नहीं जरूरत तो वो लीवर में स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर करता है, और अगर हमें जरूरत है तो उसको वो बोन मैरो में लेके जाता है ताकि हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाए। और हीमोग्लोबिन के सेल के अंदर होता है RBC। तो कहने का मतलब एक पॉइंट, मैं आप लोग को ब्लड अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन इतना याद रखे कि जितने भी सेल्स है, ब्लड सेल्स है, उसकी फैक्ट्री क्या है? बोन मैरो है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे जो बोन है ना, ये वाला इसको कहते हैं इलियक बोन। क्या कहते हैं? इलियक। और ये जो इलियक बोन है ये हिप बोन का एक हिस्सा है। इसी बोन से हम सैंपल लेते हैं जिस बंदे के अंदर बोन मैरो बायोप्सी करनी होती है। सो द बेस्ट बोन फ्रॉम वेयर वी टेक बायोप्सी वो इलियक क्रेस्ट होता है, ये इलियक बोन होता है, ठीक है। वरना हम स्टर्नम से भी ले सकते हैं, हम क्लेविकल से भी ले सकते हैं, लेकिन ईजी के लिए अब स्टर्नम से लेना मुश्किल भी है, और दूसरी बात ये फ्रंट में है और ये जगह थोड़ी सी बल्कि है तो इस जगह से लेना आसान होता है। तो द बेस्ट एरिया टू टेक बायोप्सी इज विच बोन? इलियक बोन। अब इधर देखें, यहाँ पे याद रखें इसमें दो चीजें, एक होते हैं माइलॉइड सीरीज। क्या होता है? माइलॉइड सीरीज। और एक होता है लिम्फॉइड सीरीज। ये हम आगे पढ़ेंगे ब्लड के अंदर डिटेल से, लेकिन जस्ट यू पीपल शुड नो दिस। माइलॉइड सीरीज जो होता है, याद रखें, इस माइलॉइड सीरीज से RBC बनते हैं। क्या बनते हैं? RBC। माइलॉइड सीरीज से WBC बनते हैं और प्लेटलेट्स बनते हैं। इसके बाद जो लिम्फॉइड सीरीज है उसे बी लिम्फोसाइट का नाम सुना है? बी लिम्फोसाइट बनता है, और इससे T लिम्फोसाइट बनता है। और बी लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द कैटेगरी ऑफ WBC। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, फाइटर सेल्स ऑफ द बॉडी, वो हमारे पास क्या है? WBC। तो लिम्फोसाइट्स जितने भी है इंक्लूडिंग B सेल्स एंड T सेल्स, ये सारे के सारे किस सीरीज से आते हैं? माइलॉइड सीरीज से। आते यहाँ से है बट दे आर इन द कैटेगरी ऑफ WBC, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूँ, हमने पढ़ना इसको डिटेल से आगे है, लेकिन ट्रिक ये है, अब सुन ले, एनी कैंसर, बात सुने, एनी कैंसर विच अराइजेस फ्रॉम द बोन मैरो, जो कहाँ से आ जाए? बोन मैरो। एनी कैंसर, ये बात गौर से सुनकर अपने जहन में बैठा ले, एनी कैंसर विच अराइजेस फ्रॉम दी बोन मैरो विल बी नोन एज ल्यूकीमिया। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। अब देख एक जनरल बात करते हैं, यहाँ से कैंसर को हम क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा डिटेल से, लेकिन सुन ले, अगर कैंसर बोन मैरो से है तो वो ल्यूकीमिया है, लेकिन फिर ये देखना है बायोप्सी के अंदर कि माइलॉइड सीरीज से है या लिम्फॉइड सीरीज से है। ये तो दोनों बोन मैरो में है। अब कैंसर यहाँ से निकले है तो ल्यूकीमिया, यहाँ से निकले फिर भी ल्यूकीमिया है, क्योंकि ये सारे के सारे किसके अंदर हो रहे हैं? बोन मैरो। अब सुन ले, ऐसा कैंसर जो कहाँ से निकले? शाबाश, लिम्फॉइड सीरीज से और बोन मैरो में हो तो इसको हम कहते हैं लिम्फॉइड ल्यूकीमिया। क्या कहते हैं? लिम्फॉइड। उसमें लिम्फोसाइट बढ़ते हैं। अगर कैंसर कहाँ से निकले? माइलॉइड, तो उसको माइलॉइड ल्यूकीमिया कहते हैं। लेकिन वो ल्यूकीमिया अगर जल्दी आती है और जल्दी खत्म हो जाती है तो एक्यूट है, अगर लॉन्गर रन में जाती है तो क्रोनिक है। तो यहाँ से आने वाला कैंसर जिसमें किस चीज़ का लेवल बढ़ जाए? WBC स्पेशली, अगर चीज का लेवल भी बढ़ेगा लेकिन ज्यादातर WBC शॉर्ट टर्म तक रहे, उसका नाम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है। और इस एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर हम एंटी कैंसर ड्रग तो देंगे, कैंसर को कम करने के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं? एंटी कैंसर। एंटी कैंसर ड्रग की ट्रीटमेंट को कीमोथेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। लेकिन हम अगर एक विटामिन यूज करके इस माइलॉइड सीरीज से एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ WBC को क्या कर सकते हैं? काम, तो विटामिन ए है। सो विटामिन ए आप लोग इतना आसान और हल्का ना ले, विटामिन ए एक ऐसी विटामिन है जो हम एक कैंसर की ट्रीटमेंट में भी दे सकते हैं, और उसका नाम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है, ठीक है जी। ये इसके जनाब 3 यूज है। नंबर 1, शाबाश, नंबर 1 ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मीजल्स एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वन कैंसर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये जब मैं हेमाटोलॉजी या ब्लड पढ़ाऊंगा ये मजीद इसमें एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग और भी अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब लेकर डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ए की जनाब लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाए, डेफिशिएंसी, शाबाश, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो फिर क्या होगा? अगर विटामिन ए की जो
लेवल है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाए, कम। तो मैंने कहा ये म्यूकोजल सरफेस को ये क्या रखता है, इसकी टेक्सचर को मेंटेन करता है। और उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आंख के अंदर जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको कंजक्टाइवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्टाइवा। ये देखें ये आईलिड्स है, अपर आईलिड्स एंड ऑफ लोअर। अगर आप इस आंख की आईलिड को उल्टी करें तो वो रेड नजर आती है कि नहीं, और इस रेड एरिया के ऊपर जो एक थिन मेम्ब्रेन होती है उसको कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्टाइवल। हम मोटरसाइकिल चलाते हैं सर्दी के मौसम में, या एलर्जी होती है तो हमारी आंखें सुर्ख हो जाती है, क्योंकि जो कंजक्टाइवल लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस। तो कहने का मतलब अगर विटामिन ए कम है तो कंजक्टाइवल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मेंटेन नहीं होगी। वैसे हमारी आंख के अंदर से लुब्रिकेट है कि ड्राई है, लुब्रिकेट है, उसकी मेंटेनेंस भी विटामिन ए करती है। तो अगर आप लोगों के ख्याल में विटामिन ए नहीं है तो मेरी कंजक्टाइवल लेयर लुब्रिकेट होगी कि ड्राई हो जाएगी, ड्राई। ड्राइनेस ऑफ विच लेयर, कंजक्टाइवल लेयर इन द आई इज नोन एज कंजक्टाइवल जीरोसिस। इसको क्या कहते हैं, कंजक्टाइवल जीरोसिस। जीरोसिस मीन ड्राइनेस। आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होगा जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो प्लांट है जो डिजर्ट्स के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब यह है हाइड्रोफाइट्स जो वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है। म्यूजोफाइट जो मॉइस्चर एरिया, तो म्यूजोफाइट, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट। तो जीरो मीन ड्राई, इसका मतलब कंजक्टाइवल लेयर का ड्राई होना, दैट इज कॉल्ड कंजक्टाइवल जीरोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैं यहाँ से बहुत सारा इस पर जोर दूंगा। जब कंजक्टाइवल क्या हो जाएगी, ड्राई, तो इसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स बनना शुरू हो जाती है। क्या चीज, स्पॉट्स। ये कंजक्टाइवल लेयर है आंख का अंदर वाला साइड, इसके ऊपर इस तरह छोटे छोटे क्या बनना शुरू हो जाती है, स्पॉट्स। दी स्मॉलर स्पॉट्स इज नोन एज बाइटोट स्पॉट्स। इसको क्या कहते हैं, बाइटोट स्पॉट्स। वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन। स्पॉट्स हम पढ़ेंगे बहुत सारे, एक हम पढ़ेंगे वैसे कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, रोज स्पॉट्स, गुलाब जिसको कहते हैं रोज, ROSE। रोज स्पॉट्स ये चेस्ट पे बनते हैं एंड दैट इज अ साइन ऑफ टाइफाइड फीवर। ये किसके अंदर होते हैं, टाइफाइड फीवर। तो स्पॉट्स को देखकर बहुत सारी डिजीज हम पढ़ेंगे, उनमें से एक स्पॉट्स का नाम क्या है, बाइटोट स्पॉट्स। तो मेरे दो क्वेश्चन हैं आप लोगों से। बाइटोट स्पॉट्स इज अ क्लिनिकल कंडीशन विच इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ vitamin A. Number 1, Bitot spots are the smaller spots-like lesion which is seen in the eye on the surface of conjunctiva. Exam में आते हैं on the surface of cornea, on the surface of lens, on the surface of retina या on the surface of conjunctiva. ये conjunctiva के ऊपर होती है। और conjunctiva है क्या, it's the mucous membrane layer in the eye which keep the eye lubricate. जो eye को क्या रखती है, lubricate रखती है। तो विटामिन ए की कमी से conjunctival layer ड्राई हो जाएगा, इसको conjunctival जीरोसिस कहते हैं। और इसके ऊपर स्मॉलर डॉट्स बन जाएंगे, इसको बाइटोट स्पॉट्स कहते हैं। वैसे ड्राई आई इज गुड और लुब्रिकेटिंग आई, लुब्रिकेटिंग, क्योंकि ड्राई आईज के ऊपर रीअकुरेंट ऑक्यूलर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट, इस कंजक्टाइवा के बाद जो बात है आगे वो कोर्निया में जाएगी। द कोर्निया बिकम ड्राई, क्या ड्राई हो जाएगी, कोर्निया। एंड ड्राइनेस ऑफ द कोर्निया इज कॉल्ड केराटोमलेशिया। इसको क्या कहते हैं, केराटोमलेशिया। याद रखें, केराटो इज द वर्ड यूज फॉर कोर्निया, ये कोर्निया के वर्ड यूज होता है। अगर किसी से आपको सवाल करे, ये जाकर अपने दोस्त से पूछे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोर्निया को क्या कहते हैं, नेवर से कोर्नियाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोर्निया इन द आई इज कॉल्ड केराटाइटिस। इसको कहते हैं केराटाइटिस। तो केराटो या केराटाइटिस इज द वर्ड यूज फॉर कोर्निया। तो ड्राइनेस ऑफ द कोर्निया इज नोन एज केराटोमलेशिया। अब यहाँ पे इसको केराटोजीरोसिस भी कहते हैं, केराटोमलेशिया भी कहते हैं, दोनों चीज है। और आखिर में जब कोर्निया खराब हो जाए तो हम जब ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो रेज अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अंदर रेज जाने के लिए कोर्निया की ट्रांसपेरेंसी चाहिए। जब वो खराब हो जाए, स्पेशली वो चीजें जो हम रात को देखते हैं, उसकी जो प्रॉपर रॉड सेल्स होते हैं या ऑप्शंस है वो फिर काम नहीं करेंगे। इवेंचुअली द पर्सन बिकम नाइट ब्लाइंड। क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंड। आखिर में लेके नाइट ब्लाइंडनेस। तो PMDC में या इस तरह यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो डायरेक्ट आता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी साइन फॉर विटामिन ए, आंसर इज नाइट ब्लाइंडनेस। वो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरी बात, स्किन की टेक्सचर और म्यूकोजा की टेक्सचर अगर ना हो तो देयर विल बी अल्सर्स फॉर्मेशन, GIT अल्सर्स, माउथ अल्सर्स, इसकी फॉर्मेशन भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। लेकिन अगर आप सारी चीजें भूल जाए बॉडी के अंदर, जस्ट रिमेंबर वन, दैट इज विटामिन ए की कमी स्किन पे ज्यादा असर डालती है कि आई पे। So please remember, whenever we talking about vitamin A deficiency, everyone should know या should think about eyes के ऊपर काम आप लोगों ने याद रखना है। तो सुन ले 3 सवाल। The ultimate result of vitamin A deficiency is night blindness. That's it. Which spots will be seen in due to vitamin A deficiency? Bitot. और ये bitot spot जो है ये कहाँ पे बनते हैं, ये कंजक्टाइवा पे बनते हैं। They are very very common. लेकिन ये फैट soluble विटामिन है कि वाटर soluble? फैट। ये तो डेफिशिएंसी के साइन है। कभी कभार विटामिन ए की लेवल हद से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लेकर टॉक्सिसिटी, अगर विटामिन ए की लेवल हद से बढ़ जाए ये भी तो बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है ना। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उसकी क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी। और टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादातर विटामिन ए की फैट सॉल्युबल विटामिन की वजह से होती है। नंबर 1 लेके, विटामिन ए एक्सेस टॉक्सिसिटी कैन कॉज एलोपेशिया। ये क्या करा सकती है, एलोपेशिया। एलोपेशिया मीन स्पॉन्टेनियस हेयरिंग लॉस।
اس کا مطلب یہ ہے، یا اسپونٹینیس ہیئر لاس، اس کا مطلب یہ ہے بالوں کا گرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بال ہے یا جو ہیئرس ہے دے بیکم تhin، کیونکہ وٹامن اے کی کمی سے سوری ٹاکسیسٹی سے ہیئرنگ لاس کے چانسز زیادہ۔ ایکسس وٹامن اے ڈیمیج دا ہیئر فولیکلس، یہ ہیئر فولیکلس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اور یاد رکھے یہ عجیب بات ہے، ایگزام کے لیے ہم نے وٹامن B7 بھی تو پڑھنا ہے، جس کو ہم نے نام کیا دیا ہے، بایوٹین۔ کیا دیا ہے؟ بایوٹین۔ بایو مین لائف، بایوٹین از دا لائف فار سوری ہیئر فولیکلس۔ کہتے ہیں جس شیمپو کے اندر، جس صابن کے اندر وٹامن B7 ہو اور زنک ہو، کیا چیز ہو؟ زنک۔ ایک شیمپو آتا ہے پریکٹس میں، لیکن یہ عام شاپ سے نہیں ملتا، دیٹ از کارڈ بایوزی، اس کے نام سے ایک شیمپو آتا ہے، یہ نام سنا ہے؟ بایو مین بایوٹین، ٹھیک ہے، زی مین زنک۔ جس چیز کے اندر بایوٹین ہے، وٹامن B7 اور زنک، اس کی ہیئر تھننگ جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کہو گے کہ سر یہ تو ویسے ہم یوز نہیں کرتے، ایک دن یوز کرتے، 2 دن یوز نہیں کرتے، اس کے ایفیکٹ آتے ہیں 2 سے 3 مہینے کے بعد، لیکن انکلوڈنگ ایوری ون آف اس ہم یوز ہی نہیں کرتے، ایک دفعہ یوز کرتے ہیں، پھر چاہے لائف بوائے مل جائے، چاہے پینٹین مل جائے، ہم ان کو پھر نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن جو بندہ یہ صحیح طریقے سے یوز کرے گا، بہت سارے مریض آتے ہیں، پیشنٹ آتے ہیں، ان کو میں نے یہ ریفر کیا ہے، ڈیفینیٹلی دے شو ریزلٹس۔ سو بایوزی، آپ لوگ جو ہے نا یہ لہسن وغیرہ لوگ لیتے ہیں یا پیاز وغیرہ، اس طرح کنسیپٹ لوگ بتا دینا، اس کا پانی اٹ کنٹین زنک میگنیشیم، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسکن سینسٹیوٹی ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وٹامن B7 کی کمی ہو جائے، میری بات سنیں، کیا ہو جائے؟ وٹامن B7 کی کمی، ڈیفیشنسی سے کیا ہوتا ہے؟ ایلوپیشیا۔ اور وٹامن اے کی جب کیا ہو جائے تو پھر ایلوپیشیا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتا ہے، یہ ایگزام یاد رکھیں۔ نیکسٹ ٹھیک ہے، اندر از دیٹ از زیروسٹومیا، ڈرائی ماؤتھ، کیا کراتے ہیں؟ ڈرائی ماؤتھ۔ اور یہاں پہ لے کے زیروڈرمیا، اس کا مطلب یہ ہے زیرو ڈرما مطلب ڈرائینس آف دا اسکن، ڈرائینس آف دا ماؤتھ۔ ایلوپیشیا، یہ سارے وٹامن اے کی ٹاکسیسٹی سے ہوتی ہے، اور سم ٹائم نٹ اے اسٹرانگ پوائنٹ، میں بے سے بتا رہا ہوں، نٹ اے اسٹرانگ پوائنٹ کچھ لوگوں میں کرونک کانسٹیپیشن کراتی ہے۔ لانگر رن میں وٹامن اے کی جب ٹاکسیسٹی ہوتی ہے تو دے کین کاز کرونک کانسٹیپیشن۔ وٹامن اے ٹاکسیسٹی از ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ بٹ اٹس ڈیفیشنسی از ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو اگر آپ لوگوں نے یہاں سے گیٹ کرنا ہے تو اس کی کیا ہے؟ ڈیفیشنسی ہے، ٹھیک ہے۔ اینی کوشچن ان دس؟ بس زیروسٹومیا مین ڈرائی ماؤتھ، ٹھیک ہے، زیرو مین ڈرائی، اسٹومیا مین ماؤتھ۔ سو ڈرائینس آف دا ماؤتھ از زیروسٹومیا اینڈ ڈرائی اسکن از زیرو ڈرما، ٹھیک ہے۔ ڈرما مین اسکن کو کہتے ہیں، اور کانسٹیپیشن مین لیک آف اسٹول یا ڈیکریز GIT موٹیلیٹی، دیٹ از کالڈ کانسٹیپیشن، ٹھیک ہے۔ چلے بریک کرے، پھر اناٹمی انشاءاللہ آج اسٹارٹ کر، سمجھ گئے کہ نہیں؟ کل ہمارا ٹارگیٹ وٹامن D, E اینڈ K ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔